Morning, everyone. Any questions for what we discussed last time? Hello, am I audible? Yes, you're audible. Any questions? Okay. So TPM हो गया था and we've completed this what if analysis as well. Okay. VLOOKUP कर रहे थे. हाँ जी, तो मैंने आपको दो टेबल बोले थे. एक की रेट टेबल बना लिया था आपने, which is your data. Just get this, create this table. This table should be on the, which is your roll number and marks. And then I have another table, which is this yellow, which has roll numbers in different order and marks column is black. तो table create करिए, and these tables should be extreme left and the top of the worksheet. VLOOKUP stands for vertical lookup. Now, what it does, so we in our database, so which is a red table. Red table is our database. We have got marks against each roll number. Now, in another sheet, we have roll numbers. So what we want Excel. For example, roll number 12. We want Excel to search roll number 12 in the database, which is red table. Let me take different color. So search roll number 12. रोल नंबर 12 सेकंड नंबर पे है, उसके सामने 77 है. 77 को पिक करके वो इस शीट में ले आएगा और यहाँ पे फिल कर देगा 12 के सामने. दैट इज व्हाट VLOOKUP is. Is that clear conceptually before I explain कैसे करना है? Yes, sir. Now, come to the table where you want Excel to give the values and open the VLOOKUP formula. करिए इतना.
Now, lookup value is this roll number 12 because we want Excel to pick this up and search this. That is called as lookup value. Table array, go to the red table, which is your original database, and select this table. कॉलम इंडेक्स जो हमारी टेबल थी रेड वाली, उसमें कौन से कॉलम से आपको वैल्यू पिक करनी है? सेकंड कॉलम से, सो कॉलम नंबर 2। रेंज लुकअप हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो फॉल्स डाल दीजिए। Okay, now you will get 77. Let's check this. Go to the original database. 12 के सामने 77 है, तो yes, this is right. Any questions on this? Now, जो टेबल एरे था उसको फ्रीज कर लीजिए। मैंने टेबल एरे को फ्रीज कर दिया। और अब ड्रैग कर दीजिए इसको। डन। दिस इज वर्टिकल लुकअप। कर लीजिए। इफ इन केस एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। डन। Okay, so I take that as done. I am getting an error message. ठीक है, आपने कुछ डिफरेंट तो नहीं किया? नहीं, सेम ही करा है। फ्रीज किया आपने ये- टेबल एरे? अभी फ्रीज नहीं करा, बट फ्रीज करके भी 0 आ रही है वैल्यू फिर। आपने दोनों टेबल्स एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप पे बनाए हैं? हाँ जी, ये आ रहा है one or more circular references in your workbook. हाँ, तो ये वी लुकअप का प्रॉब्लम नहीं है। आपने कुछ आपकी जो एक्सेल शीट है उसमें आपने कुछ तो गलत किया। नए टेबल बनाइए, दो नए टेबल बनाइए, दो नए शीट्स में। और जो आपकी वैल्यूज हैं, जो डेटा टेबल की वैल्यूज हैं, वो आपने सर्कुलर रेफरेंस तो नहीं, सॉरी सेल रेफरेंस तो नहीं करी? कोई टाइप करनी है हाथ से दोनों टेबल की हाँ, वैल्यूज।
नहीं, सब हाथ से टाइप करके बनाया। क्योंकि जो एरर आप सर्कुलर रेफरेंस बोल रहे हैं तब आता है जब अगर आपने सेल रेफरेंसिंग करा हो टेबल में। चेक करो एक बार। तो हैश एनए का क्या मतलब होता है इसमें? एरर आ रहा है। मतलब वो वैल्यू नहीं मिली? हाँ, डन। थारुल, Just a minute, just a second. नहीं हो रहा, चलो। It's coming 0 now. Where नहीं आ रहा। कोई नहीं, can move ahead. I'll try again. थारुल, आई कैन गिव यू एक्सेस अगर आपको स्क्रीन दिखाना है मुझे तो आई कैन सी। Should I make you the presenter? I don't know how to do that because I am connecting through my mobile as I'm working on my laptop as well. So I'm not sure Okay. how that will happen. It will not work then because then your mobile will get connected. Yeah. ठीक है, आप चेक कर लेना and Yeah, in I'll case check it again will and work I'll let you know तो tomorrow. Yeah. नेक्स्ट क्लास में अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट करो तो फिर यू कैन शो मी। ठीक है, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर क्वेरी मे बी लुक अप? सर हाँ सर संजय। हेलो सर, ये लास्ट वाला में ना मुझे ठीक नहीं आया, बाकी आपका मैच हो गया। 12 के सामने 77, 52 के सामने 43 और ये लास्ट वाला में एनए दिखा रहे थे। वो कैसे? 42 में हाँ, ये 42 में। क्योंकि आपने सेल्फ फ्रीज नहीं किया ना। हाँ, वो सर फ्रीजिंग में बता दिया सर। सेल्फ फ्रीजिंग किया आपने? नहीं सर, सेल्फ फ्रीजिंग नहीं रखते। तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ सेल्फ फ्रीज करो। सर मैं देखने का बताइए मुझे, सिर्फ फ्रीजिंग बता दीजिए बस। सेल्फ फ्रीज कैसे? ये टेबल एरिया में डॉलर फ्रीज करिए। एक बार ये कॉलम इंडेक्स का लॉजिक बता दीजिए। ये जो कॉलम टूल इंडेक्स ही जो आपने कॉलम इंडेक्स जो आपने टेबल जो आपका डेटाबेस है which is red table in this, in that which column number you want Excel to pick the value from. So for example, the first column is roll number and second is marks. So I want Excel to pick the data from the second column of this table. That is why it is 2 in column index. Okay. From And which fall? column Excel should pick the value. Yeah, got it. Sanjeev, done? यस सर। Okay. So that VLOOKUP. ऐसे ही H lookup होता है. The only difference is H lookup will work for a table
अगर वो हॉरिजॉन्टल हो, अगर ऐसा टेबल होता, ये जो रियल येलो में दिख रहा है, लेट मी चेंज द कलर, ऑरेंज में अब जो टेबल दिख रहा है, अगर ऐसा टेबल होता तो मैं एच लुकअप यूज करता। एच इज हॉरिजॉन्टल लुकअप, ठीक है, बट इट्स सेम। ठीक है, एंड वी लुकअप इज वर्टिकल। तो डिपेंडिंग आपका टेबल कैसे अरेंज हुए वो आपको वैसे चूज करना है, अदरवाइज मेथड इज सेम। डन। चलिए, गोल सीख हमने कर लिया था। चलिए चार्टिंग करते हैं नेक्स्ट। एक टेबल क्रिएट कर लीजिए, जैसे ये है ऑरेंज टेबल। नाउ चार्टिंग मीन्स क्रिएटिंग चार्ट्स, ठीक है, ग्राफ्स। So वो करते हैं। So once you created this table, come to insert, ठीक है, and insert में charts, and you can select this 2D। So ऐसा एक blank चार्ट एरिया आ जाएगा। करिए ना तो। डन सर। Right click on this area
and select data. Click on select data. And come to chart data range. In chart data range, select this orange table. You will see आपका चार्ट बन गया होगा. चार्ट देख लीजिएगा, कुछ चेंज नहीं करना है तो ओके पे क्लिक कर दीजिए. Yes, sir. Now, if you click on this plus sign, you can do a lot of adjustments. For example, अगर आप एक्सेस टाइटल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेस टाइटल आ जाएंगे. आप इस पर टाइप करके चेंज कर सकते हैं. जैसे स्टूडेंट नेम, ठीक है. और वाई एक्सेस पे मार्क्स. डेटा लेबल्स भी कर सकते हैं आप. अगर आपको, आप इनसाइड द एंड भी कर सकते हैं. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो आप कर सकते हैं. ठीक है. आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं. चार्ट के अंदर ही टेबल आ जाएगा. आप ग्रिड लाइन हटा भी सकते हैं. ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हैं आप. कर लीजिए सब ये ट्राई कॉम्बिनेशंस. I'll give you a minute. Please try all this combination within, which is under the tab plus. Sir, I'm not getting this plus sign. Done? Any questions in this? Sir, can Yeah. you explain plus Yeah. sign कहाँ से आया? इधर चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ही आ जाएगा. ये तीन दिख रहे होंगे आपको. ये डिपेंड करते हैं आप एक्सेल का कौन सा वर्जन यूज करें. अगर आप कुछ पुराने वर्जन एक्सेल की यूज करते हो शायद उसमें नहीं होता है फीचर, इफ नॉट रॉन्ग. Otherwise, if you're using this, what I'm using or more updated than this, then आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ प्लस साइन दिखना शुरू हो जाएगा. So, जैसे आप ये क्लिक करेंगे यहाँ पे वो प्लस साइन आएगा आपको.
प्रॉब्लम अगर आपके में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्ली वो एक्सेल आई थिंक वर्जन पुराना होगा। जो नए आपका एक्सेल कौन वर्जन सा है वर्जन उसमें है सर? वी कैन चेक। जो नए वर्जन है उसमें और फीचर्स आ रहे होंगे। पारुली मुझे वर्जन चेक नहीं करने दे रहा बिकॉज मेरे पास एडमिन राइट नहीं है इस लैपटॉप के। I'm not sure which version are we working on. I have 2007 sir, it is not coming. हाँ 7 में नहीं है, आई थिंक 10 या 11 में है। तो नेक्स्ट अगर आप एक ब्रश जैसा साइन देख रहे होंगे तो उसको क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट चार्ट के फॉर्मेट्स या कलर्स दिख जाएंगे। तो आप क्लिक करेंगे तो आपके वो चार्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस अगर आपको कोई और कॉम्बिनेशन या स्टाइल या पैटर्न यूज करना है तो। डन। फिर आपको एक थर्ड फिल्टर कॉलम फिल्टर टैब दिख रहा होगा। फिल्टर टैब से सपोज I don't want Ravi to come into this chart. So I can untick that. ठीक है, तो आप वैसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स द चार्ट ग्राफ। अब आप ग्राफ में इंसर्ट में 3D कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स क्रिएट कर सकते हैं चार्ट का। लेट्स आई वांट टू क्रिएट 3D, आप ऐसा भी क्रिएट हो जाएगा। वो 3D का ऑप्शन किस में आया? इंसर्ट, ये चार्ट्स
और यहाँ पे देखो 3D कॉलम, 3D के फॉर्मेट होते हैं। Yeah, got it. Done. So अब similarly different type of क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे हॉरिजॉन्टल भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, ठीक है। तो टेक्निकली ये सारे ग्राफ्स एक ही तरीके से बनते हैं, इट्स ओनली डिफरेंट पैटर्न। वो पैटर्न, जिस पैटर्न में आपको चाहिए वो चूज करिए, एंड एक्सेल विल ऑटोमेटिकली क्रिएट इन दैट पैटर्न और स्टाइल। ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन ग्राफ? Okay. Next is the pie chart. Again, very similar. Insert, select this pie chart, and again, depending of आप कौन सा बनाना चाहते हैं, let's with create 3D pie chart. आपके पास blank chart एरिया आ जाएगा। Right click on this, select data, and जो आपका data है उसको select कर दीजिए। Again, आप different combinations में create कर सकते हैं। आप आई को थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं, if you want to show a particular type of marks separately. Just spend some time and try and make these adjustments. This is more for enhancement and beautification. You can change the color of these tabs as well. ठीक है, या फॉर्मेट से चेंज कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आई वांट दिस टू बी रेड, तो मैं रेड भी कर सकता हूँ। तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज द कलर एज वेल। हेलो सर। या फिर सर जैसे डाटा किसी और पेज में हो, नॉर्मली जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं सेमेस्टर या इस टाइप का, तो डाटा किसी और में रहता है और चार्ट किसी और पेज में रहता है, तो वो कैसे बनता है? सेम ही है ना, आप सेलेक्ट कर लो डेटा वहां से, यहाँ पे कर लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम शीट 13 में तो मेरा डेटा किस में था,
शीट 11 में और मैं शीट 13 में, और शीट 13 में मुझे बनाना था, यहाँ पे इंसर्ट करो पाई चार्ट, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, सिलेक्ट डेटा। अब डेटा जब सिलेक्ट करना है तो उस शीट में जाके सिलेक्ट कर लो और ओके कर दो, तो आपके ओरिजिनल शीट पे डेटा आ जाएगा। शीट 13 में आया ना, बट डेटा तो शीट 11 में था, हाँ तो वैसे ही होना, कोई डिफरेंस नहीं। हाँ। करके देख लीजिए आप। अच्छा। उस चार्ट को कॉपी करना है सर? कॉपी नहीं करना, सेल रेफरेंस करना, वो टेबल को रेफरेंस करना सिलेक्ट डेटा में। फिर सिलेक्ट डेटा करोगे, यहाँ पे उस टेबल को रेफरेंस करना है। हाँ जी, डन। एनी क्वेश्चन? और ना चलिए, तो ऐसे ग्राफ्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के, आप ट्राई कर लेना, बट एग्जैक्टली सेम बनेंगे। ऐसे ही आप बार लाइंस बना सकते हैं, अगेन सेम। सपोज मुझे इसके लिए बार लाइन बनानी है, ठीक है, या इस तरह के चार्टिंग एरिया यूज करना है, सो डजंट मेक अ डिफरेंस, इट विल रिमेन सेम। आपको स्कैटर्ड डायग्राम यूज करना है डॉट्स के साथ, ठीक है, सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस एग्जैक्टली फ्रॉम एक्सेल पर्सपेक्टिव, एग्जैक्टली विल बी यू बी यूजिंग द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस इन द चार्टिंग साइड? अगर आपके पास कोई टेबल डेटा हो घर पे या किसी और एक्सेल शीट में, you can try and bring that and try and use different combination of charts, so that will help you to understand this pretty better. Sir, is it better to upgrade the Excel version, or we can keep working on the same version? Ideally yes, because मैं भी जो ये use कर रहा हूँ, this is not the latest version, but given you do not have an admin right on this laptop, you have no choice. But अगर आपके पास opportunity है, choice है, and it's under your control, ideally yes, if you work on the latest version of the Excel. uh, Currently I can see only these three tabs, correct, plus a paintbrush and then filter. In the new version you can see Yes. much more features on this, so it's always better, correct? Latest version is 2011. No, No, it's 2013 we are working yeah, on in my yeah, I think it's 13, or a little, I think more than 13, so around 13 तो I'm aware कि है market में, so 13 के आसपास I think आपको मिलेगा। चेक कर लो, अगर आप लेटेस्ट कर सकते हो तो आई थिंक देयर इज नो उसके बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, सो डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे अरेंज करते हो वो आप देख लो, बट इफ दैट्स विद इन योर comfort zone, yes, ideally you should work on the latest version. That will help you to get more user friendly features. I will call that. There's no additional calculation feature, but they are more user friendly features. जैसे ये जो हमने अभी यूज किया, इससे आपको आसानी से आपका चार्ट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में क्रिएट कर सकते हो। चार्ट वही रहेगा, डेटा वही रहेगा, बट from a beautification perspective, from a looks perspective, it allows you to do a lot of other things as well. So that's the difference in the newer version of the Excel. Okay, sir. Apart from this, shapes, uh,
you don't use too much in financial modeling. Still, couple of time we might, but not aggressive. So आप different shapes, for example मुझे arrow create करना है, so I can create like this, and इस पे मुझे फिर कुछ रोटेट करना है, मैं रोटेट भी कर सकता हूँ. सपोज ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है. So if I write anything on this, I can write as well. So I can go to insert and I can select this text table, text box, and then इस पे text box create कर सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं suppose we look up. Yeah, so you can do all these combinations. This one, this arrow one is not aggressively more for financial modeling, but sometimes when we present this final financial model to the client, if you want to explain more than what ideally we do, then we try and use these combinations from formatting perspective. Okay. So insert में table pictures, screenshots, smart art भी आप अगर क्लिक करेंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई हायरार्की बनानी है, कुछ मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, तो आप इस पर क्लिक करिए, आपको फ्लो चार्ट आ जाएगा, एंड देन यू कैन टाइप इन दिस. यू डोंट नीड टू, फॉर एग्जांपल ऐसे स्टेप 1, ठीक है, एंड देन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग स्टेप 1, तो ऐसे टेबल में आ जाएगा. फिर स्टेप 2, तो ऐसे आपको सर्कुलर फ्लो कुछ क्रिएट करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं. बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की चेंज हुआ है, आपको एक नया मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, आपको सिर्फ नेम और उसके डेजिग्नेशंस एंटर करना है, इट विल क्रिएट अ मैट्रिक्स फॉर यू. ठीक है. अदरवाइज आई थिंक वी हैव डन विद दिस. लाइंस हमने कर लिया, लिंक हमने कर लिया, टेक्स्ट बता दिया आपको. या सो दैट्स द इंसर्ट. कर लीजिए ट्राई, कुछ पूछना है तो बताइए. अब पाइवट टेबल क्या होता है? श्रीकांत जी आस्किंग नहीं. पाइवट टेबल क्या होता है? पाइवट टेबल अभी करेंगे, पाइवट अभी हमने किया नहीं, तो पाइवट ही कर लेते हैं. चलो, चार्ट में किसी को कुछ डाउट है बिफोर आई गो टू पिवट टेबल? इन द इंटर में पिवट टेबल के लिए कुछ डेटा देखता हूँ, कुछ डेटा थोड़ा बहुत होना चाहिए हमारे पास उसके लिए. चलिए इसी पे करते हैं. डेटा कॉपी कर लेते हैं. चार्ट में किसी को कुछ पूछना बिफोर आई गो टू पिवट? चलिए ये टेबल बना लीजिए आप लोग. क्रिएट दिस टेबल.
Done. Just give me a minute. सॉरी, या सो ये हाँ डेटा बन गया आपका ना। पिवट टेबल क्या होता है? सो इंसर्ट में आइए और पिवट टेबल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ओके सॉरी, सो मैं सेम डी बनाता हूँ। इंसर्ट पिवट एग्जिस्टिंग वर्कशीट शीट 7 करिए। डन ना? पिवट टेबल क्या करता है? पिवट टेबल आपको जो है एक हिट एंड ट्रायल कॉम्बिनेशन देता है ऐसा, ठीक है? आप अपने हिसाब से जो वैल्यूज हैं इनको ये फिल्टर्स में पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नेम कॉलम पे चाहिए और आपको सैलरीज के रो में चाहिए, या आपको लगता नहीं मेरे को टोटल चाहिए, ठीक है, मुझे फिल्टर्स में चाहिए, तो आप इस तरीके से डिफरेंट, बिकॉज ये तो डेटा इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज वी नीड मोर डेटा ऑन दिस, बट द ऑब्जेक्टिव इज कि आपका जो डेटा है वो डेटा को एक हिट एंड ट्रायल कॉम्बिनेशन में ले आता है और आप उससे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं कि अगर मैं डेटा को यहाँ पे रखूं या ये वेरिएबल को यहाँ पे रखूं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखो, ये कॉम्बिनेशन सीम्स टू बी बेटर, करेक्ट? कि आपके पास रो है, उनकी सैलरी दिख रही है, एट द एंड आपको ग्रैंड सैलरी का टोटल दिख रहा है, ठीक है? सो दिस सीम्स टू बी बेटर। अब आपको वो चूज करना है, आपको कौन सा फॉर्मेट ऑफ द टेबल आपको यूजफुल लगता है, जिसकी कंप्यूटेशन जिस भी पर्पस के लिए आप कर रहे हैं। So that is called as pivot table. Pivot table allows you to change different combinations at the same time.
ठीक है। सपोज मुझे हंटर और पेंटर के टोटल चाहिए सैलरी के, तो कितने हंटर है, उनकी सबकी सैलरी कितनी है, तो मैं ये कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, आपको अगर आपके पास कोई हो घर पे कोई डेटा, आप उसमें पिवट टेबल के साथ थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ आना शुरू हो। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स थिंक इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, इट्स मोर ऑन हिट एंड ट्रायल। कि आपके पास 4 फिल्टर्स है, 4 कौन कौन से फिल्टर्स है वो बता देता हूँ। ये फिल्टर है, यानी जिसमें आपको फिल्टर करना है डेटा, आप कौन से वेरिएबल को फिल्टर करना है, कॉलम जो आप कॉलम में रखना चाहते हैं, जो आप रो में रखना चाहते हैं, और जिसकी आपको टोटल करनी है वैल्यू। तो इन 4 कॉम्बिनेशन में अगर आप क्रिएट करते हैं तो टेबल आपके सामने लाइव बनता रहता है, और आपको जो टेबल ठीक लगता है यूज के पर्सपेक्टिव से, आपके पर्पस के हिसाब से, आप उसको पिक एंड चूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पिवट टेबल। पिवट मतलब एक टेम्पलेट बना देता है आपके लिए। एनी क्वेश्चंस? ये साइमल्टेनियसली बार ग्राफ भी चल रहा है? यस यस, बार ग्राफ वगैरह सब बना सकता है साइमल्टेनियसली अगर आपको जरूरत है तो। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर ये है, अब आपका डेटा फ्रीज हो गया तो उसके बाद वो इंसर्ट चार्ट कर दीजिए आप, और आप चार्ट बन जाएगा उस टेबल पे, और जैसे जैसे टेबल चेंज करेंगे आपका चार्ट भी चेंज होता जाएगा। वो तो उधर भी हो जाता है विदाउट पारुल, अगर जैसे अगर अभी नहीं, वो मैं विदाउट इंसर्टिंग अपने आप ही आ गया। हाँ हाँ, वो अगर एक्सेल का फीचर का डिफरेंस है ना, आप शायद वो एक्सेल जो यूज करेंगे उसमें वो फीचर होगा, या आपने शायद। ऑटो टिक कर रखा होगा तो वो आ जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे भी देखूंगा मैं, जैसे यहाँ पे इस चार्ट में, जैसे अगर आप देखोगे रवि 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 नहीं, हाँ रवि के मार्क्स जो हैं 67 है। अगर मैं 90 करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे चेंज कर देगा, 90 चेंज कर देगा, वो तो किसी भी चार्ट में कर देगा। वो तो ठीक है। ठीक है, हाँ। तो पिवट में, या पिवट के साथ चार्ट भी बन जाएगा आपको पहले, अगर आपका वो फीचर है तो। ठीक है, so that's pivot. Anything else? I think insert में pivot भी हो गया, ये भी सब हो गया। I think insert तो complete ही हो गया। या ठीक है, कुछ पूछना है तो बताइए। सर कौन से डेटा के लिए हम जनरली यूज करते हैं ये पिवट टेबल? किसी भी डेटा के लिए आप यूज कर सकते हैं। जनरली व्हाट वी डू, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डेटा है एंड आपको वो डेटा इज अ बिग डेटा, यू वांट टू अरेंज और यू वांट टू प्रेजेंट द डेटा इन सम टैबुलर फॉर्मेट, बट वो टैबुलर फॉर्मेट आप श्योर नहीं है कि कौन सा टैबुलर फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट वी डू, वी प्लॉट द पिवट ऑन द डेटा, एंड देन पिवट से हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। जैसे मैंने अभी कॉम्बिनेशन आपके सामने ट्राई किया, फॉर एग्जांपल एक्स है, वाई है, और जैसे सब ट्राई करते हैं आपको पता लगता है अच्छा ये टेबल से ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये टेबल फॉर्मेट बन सकता है। तो आपको जोन सा अच्छा लगता है, जो आपके पर्पस को फिट इन है, फिर आप वो रिटेन करते हो और वो प्रेजेंट करते हो आगे। Just making it helpful in making it more presentable. प्रेजेंटेबल थ्रू एन हिट एंड ट्रायल मेथड। It's not about the beauty. The pivot table does not do Okay. any beautification. It doesn't make it doesn't enhance the presentation or looks of the table, but it allows you to create different templates of the table. I hope Parul को समझ आएगा कि it's not about the beautification, it's about the layout of the table. जैसे भी हम चार्टिंग में जो कर रहे थे, चार्टिंग में लेआउट चार्ट का सेम था, ब्यूटिफिकेशन चेंज हो रहा था, कलर है, स्टाइल है, उसके ऊपर लिखना कैसे है। पिवट इज नॉट अबाउट द ब्यूटिफिकेशन, इज अबाउट द लेआउट ऑफ द टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ठीक है,
Anybody else? Any question on pivot? आप ट्राई करना, अगर आपका थोड़ा डेटा ज्यादा है, बहुत सारी वैल्यूज है, तो हिट एंड ट्रायल करने में ज्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा, बिकॉज यहाँ पर तो मैंने कुछ वैल्यूज टाइप करी हुई है. हाँ जी, कुछ क्वेश्चन? ठीक है. So what it brings for us, so Excel में जो मुझे बेस 1 में कराने थे वो सारे हो गया है. ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज हैं अभी भी, some formulas from the basic and some from the advanced. ठीक है, as I told you, I'm not trying to make the distinction, but कुछ formulas हैं Excel में जो मुझे कराने हैं, वो मैंने रोक लिए हैं, मैं रोकूंगा. और वो जब फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसमें कराऊंगा, बिकॉज अभी कराऊंगा तो अभी आपको इतना कॉन्टेक्स्ट तो समझ नहीं आएगा. जब वो केस स्टडी कर रहे हो उसके साथ साथ आपको कुछ फॉर्मुलेज हैं मैं वहां कराऊंगा. अदरवाइज यू कैन से प्रोबेबली 10-12% टाइप्स मैंने रोके हुए हैं. उसके अलावा 80 and 85-88% के आसपास इज व्हाट यू डन. ठीक है, एज आई मेंशन अर्लियर, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि आपको सारा एक्सेल सिखाया जाए. दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए जितना एक्सेल जरूरत है वो सारा आपको सिखाया जाए. ठीक है, सो दैट्स द प्लान. जो फॉर्मुलेज रोके में, एज आई सेड, विल डू दैट व्हेन वी रीच टू दिस मॉडलिंग एक्सेल. बट स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज बिकॉज ये एक्सेल और मॉडलिंग सेशन के बीच में कुछ गैप रहेगा, स्पेशली क्योंकि आप लोगों ने वो रेशियोज वाले टॉपिक करवाने के लिए रिक्वेस्ट किया. नामनी टोल्ड मी टू डू दैट, सो व्हिच मींस अभी हम एक्सेल से वहां जाने की बजाय विल डू दोस रेशियोज डिस्कशंस एंड टॉपिक्स. सो व्हिच मीन थोड़ा सा गैप रहेगा. So please, in the interim, please, as and when you get some time, try and spend some time with the Excel जितना भी अभी तक हमने किया, so that ये अब धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाए. ऐसा नहीं हो कि जब हम 2-3 वीकेंड्स के बाद जब हम मॉडलिंग स्टार्ट करें, once you're done with the ratios, then you have forgotten everything and you're completely lost in the Excel, especially those who don't use an Excel in day-to-day work office or for any other purpose, correct? So, and those who are relatively new and do not use Excel, for them it's very important that during these next 3-4 sessions, because you'll be doing something else, please continue to be in touch with what we have done from an Excel perspective. Okay, any questions? I think we have to do this line column win loss also, or it will be at a later point of time. नहीं, लाइन कॉलम विन लॉस ये तो लाइन तो मैंने आपको करा दिया, करेक्ट, और कॉलम भी करा दिए. सो फॉर एग्जांपल सीसी टेबल का मुझे बनाना है, तो कॉलम इज नथिंग बट ये जो हमने टेबल बनाया, मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ. इज लाइक दिस ओनली. कॉलम में आपका डेटा आएगा और लाइन इज, सो हमने ये किया. जस्ट गिव मी अ सेकंड. लाइन इज दिस वन.
सॉरी, हाँ दीपक, सो लाइन और कॉलम में तो कोई डिफरेंस नहीं है, वो हमने किया है. विन एंड लॉस No, अगर no. I think what I've not done it for column. Line में तो I think we can do it for a comparative. If we'll put a more column, is row correct, wise. If you can correct, 70, and now if you are going to 80, then it will give the trend between the. correct, Uh, but what a column does. ठीक है. तो ये वाला मैं आपको बता दूं, दोनों में देखोगे आप सेम डिफरेंस इतना होगा कि यहाँ पे मैं अगर यहाँ से यूज करता हूँ फ्रॉम दिस, तो आई हैव टू डू कपल ऑफ स्टेप्स मोर एडजस्टमेंट्स में, यहाँ से रेडियली जनरेट हो जाता है. ठीक है, सो इन दोनों का आउटपुट आपको मैच करवा दूंगा. ठीक है, तो ये 2 रख लेते हैं, 2 क्या 3 रख लेते हैं, तीनों ले लेते हैं. ठीक है, ये 3 कर लेंगे. ठीक है, सो विल डू दैट. ठीक है, एनीथिंग एल्स? तो लाइन कॉलम विन एंड लॉस नोट कर लीजिए, ये हम कर लेंगे. एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? एज अ some pieces, some में ना कल है सेशन करेक्ट आपका, वेडनेसडे. हाँ, सो कल से आई इंटेंड टू स्टार्ट विद रेशियो, बट दीपक जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड वो आप लोग का क्लोज हो गया क्या? क्योंकि बिकॉज आई थिंक लास्ट क्लास में कुछ कंफ्यूजन था कि रेशियो से पहले के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक है वो मुझे करने हैं. सो वो क्लोज हो गया, बिकॉज आई वांट दैट टू बी sorted, otherwise I will start with ratios tomorrow. Has that been discussed and closed with Damni? No, not yet. ठीक है, तो एक बार वो क्लोज कर लो सो दैट वी हैव अ क्लैरिटी कि रेशियो करना है कि आप उससे और पीछे से करना है. बिकॉज अगर पीछे से करना है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम पहले वो बेसिक करें, देन वी कम टू रेशियोज. दैट वुड बी आइडियल. इफ पीछे का नहीं करना है, कुछ सिर्फ डाउट ही करना है, तो देन आई विल स्टार्ट विद द रेशियोज. सो प्लीज गेट दैट. I think we have given it to Damini last time also, that we want to brush up all the aspects right from the beginning. एक बार टच बेस From कर लेना. what I understand from Damni that your batch is requesting only for the ratios. I'm not sure कहाँ पे gap. Sir, what we tell you and what we tell Damini, it is always conflicting. This week also she was saying that there is no class, and then suddenly yesterday night she said ki there is class. So we don't know. We communicate to you too and to Damini also, but I don't know what is the gap. somebody is there from Marticus in this. So I think what so I think we've discussed correct कि आपका Thursday and Wednesday है, तो I think that's what we've agreed. ठीक है, तो scheduling का आप इतना load मत लो. So Wednesday, Thursday. That we agreed, but when we asked for if there is a session, then Damini has no idea about it. She says कि कुछ discussion हुआ नहीं है ऐसा आपके साथ. फिर कल लास्ट मोमेंट पे ही हमें पता चला है रात को. And actually, sir, we don't have meeting invite also. In the last moment only they provide the meeting link. So we are confused that we have a class or not. That's why we asked. ठीक है, चलो. So let's pass on to Damni. मैंने इनफैक्ट ट्यूसडे का भी रिक्वेस्ट किया था आप लोग, यू वांटेड टू हैव इट ऑन ट्यूसडे रादर देन वेडनेसडे, बट आई थिंक वो वर्कआउट नहीं हो रहा था. सो ठीक है, आई विल पास ऑन दैट. बट आप पहले एक बार टॉपिक वाला क्लोज कर लो, अगर आपने भेजा भी है तो उसको एटलीस्ट प्लीज टच बेस विद, so I don't want a confusion tomorrow. I will also tell Damni to get in touch with you. No, we have already cleared her that we want to start from this. I don't know what she has communicated. She has told me to do the ratio tomorrow. That's what I'm telling you. We have been telling her from the past week, sir, that we want the other topics to be covered also. What I'm telling you, tomorrow I will start with ratio unless I receive any other communication from Damni. That's what I think I is the plan. Okay, I will again tell her and think parallelly आप भी आप clear कर लो अगर वो कुछ disconnect है तो.
ओके सर। ठीक है, चलिए. So tomorrow, please, because you might need some calculation, carry and pen and paper with you as well, so that जो आपको नोट्स है थोड़ा सा अलग तरीके से होंगे रेशियोज के सेशन, अगर रेशियो करते हैं कल तो. So try and keep a pen and paper handy with you. ठीक है, चलिए, thanks. We'll connect tomorrow. Bye.